Hello students, welcome back to English grammar class. In our today's English grammar class, we are going to study active voice and passive voice. We are going to cover the topic active voice and passive voice. Children, we had studied verb. Okay, what is a verb? Verb is a word that denotes action, right? We had studied transitive verb and intransitive verb, right? So what is transitive verb? Transitive verb is a verb that needs object. Okay, transitive verbs require object. Children, we have studied about sentence. Sentence normally contain subject plus verb plus object. Transitive verbs need object. So the first rule to make a sentence from active to passive is to change the places of subject and object. Okay, we have to change the place of subject and object. And the second rule is we have to use V3 form of the verb. Okay, आपको कोई भी verb दिया है sentence में, आपको उसे V3 form में बनाकर ही लिखना है. Okay, we have to convert into V3 form. Okay, in passive voice. So let's begin the chapter. Okay, see, a transitive verb has two voice. ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो. ओके, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वैसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब. अभी ट्रांसिटिव वर्ब के दो वॉइस है. कौन कौन से हैं? So dear children, what is active voice and what is passive voice? Active voice means when the subject is represented as the doer of the action, and in passive voice the action is more stressed out more, and the object takes the place of subject. Okay, we will see the chapter further and you will understand everything. Compare the following sentences. Jay invited us to his house. Now here, Jay is the subject of the sentence. Invited is the verb of the sentence. Here there are two objects, us and house. Okay, there are two objects, us and house. Like this, you also have to identify the subject and the verb and object. Here, we were invited to his house by Jay. This is passive voice. Okay, here us, that is the object, okay, has been changed into subject. हम लोगों ने us को subjective बनाया है. Okay, we have converted us into subject. So us will become we. Okay, we, now children, we is plural, so it needs plural helping verb, that is were. We were invited, which is the third form of the verb. I told you in the beginning that we will use third form of the verb in all sentences. Okay, so we supported by were, invited, to his house. Here to is preposition which is added here, then his house. Now who is inviting Jay?
Okay, Jay is inviting, so we will write by Jay. Okay, we were invited to his house by Jay. You will observe that in the first sentence, the subject of the verb Jay is the doer of action. ठीक है, जो subject है वो ही doer है. Okay, the subject is the doer of action. Which action? Action invited. So the verb is said to be in active voice. जब सब्जेक्ट डूअर होता है, परफॉर्म करता है एक्शन, तब एक्टिव वॉइस है. इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हियर वी हैव चेंज द सब्जेक्ट. ओके, हमने सब्जेक्ट वी बनाया है, तो यहाँ वी इज बीन एक्टेड अपॉन, यानी हम लोग को इन्वाइट किया है. सो वी आर receiving the verb, we are being acted upon. So the verb is said to be in passive voice. अब आप जब आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है. ठीक है, जय इन्वाइटेड अस टू हिज हाउस, वी वर इन्वाइटेड टू हिज हाउस बाय जय. बोथ कन्वे द सेम meaning. Okay, meaning of both these sentences are same. It is just that we have arranged into active voice or passive voice. Generally, we use active voice more than passive voice in our daily life. Okay. Meaning of active voice. A sentence in which the subject of the verb is the doer of the action. Subject is doer of action. The verb is said to be in the active voice. The sentence in which the subject is the doer of the action is active voice. Here, Jay doer है. ठीक है, Jay is doing action, performing action. So Jay is subject, Jay is doer. What action he conducted? What did he do? He invited us. Jay invited us. So this is active voice. Now passive voice. What is passive voice? A sentence in which the subject of the verb is being acted upon. The verb is said to be in passive voice. So, the subject is the receiver of the action. Okay, the subject is being acted upon. In such a sentence, where verb is said to be acted upon is passive voice. Here we is the subject, okay, who were acted upon. We were invited, so we is subject, invited is the action upon us. Okay, and here the subject is not the doer. Okay, subject is we. So this is passive voice. So here conclusion table is given. Active, when the sentence is active, the doer is the subject. So who is the doer? Jay, and Jay is also subject. What is verb? Invited. Okay, invited, and object is to his house. Here object, here the subject will change. Okay, and it will become we. उसका हमने we किया क्योंकि हम अभी पैसिव बना रहे हैं. तो we were invited by Jay to his house. Okay, understood? We were invited to his house by Jay. Here
जय के पहले हमें बाय ऐड करना है. ओके, जनरली हर जगह बाय ही ऐड होता है, कभी कभी विथ, टू, ओके, ऐसे वर्ड्स भी ऐड होते हैं. सी द रूल्स. वी शैल लर्न द बेसिक रूल्स of changing a sentence from active to passive. Okay, so first we have to find the subject, verb and object. Okay, subject, verb, object. Three things we have to identify. Okay, then we have to change the position of subject and object. Okay, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें इंटरचेंज करना है, उनकी जगह हमें चेंज करनी है. ओके, सो वी हैव टू चेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब विल बी ऑन द सेम प्लेस. वी डोंट हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ वर्ब. वर्ब शुड रिमेन एट इट्स प्लेस ओनली. ओके, ऐसे हमको चेंज करना है, वर्ब को हमें चेंज नहीं करना है. ओके, वर्ब की प्लेस हमें चेंज नहीं करनी है. मीन्स दैट वी विल कन्वर्ट द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म इफ इट इज नॉट देयर, बट वी विल नॉट चेंज इट्स प्लेस. वी विल चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो फर्स्ट, in the first sentence, Joy was in the first position. ओके, एंड ऑब्जेक्ट वॉज अस. बट अभी हमें अस को चेंज करके वी बनाना है और वी को आगे लेना है और जय पीछे लेना है. जय के आगे हमें बाय लगाना है बिकॉज ही वॉज डूइंग ना, सो वी विल, ही हैड इन्वाइटेड, सो वी विल ऐड बाय. ओके, इंक्लूड द बी फॉर्म एज पर द टेंस ऑफ द वर्ब. बी फॉर्म क्या है? अपने हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर. ओके, दैट शुड बी एडेड एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. यानी इट शुड फॉलो द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए. सो इन प्रेजेंट टेंस वी यूज इज, एम, आर. ओके, in past we use was, were. In future tense we use will or shall be. Okay, will be or shall be. This will remain the same. Okay, आपने ये tenses में भी पढ़ा हुआ है, ये सेम टू सेम ही अप्लाई होगा. Let's take one example. Okay, the cat killed a snake. Okay, here what is the subject? Subject is the cat. Killed is the main verb क्योंकि killed is showing action of cat. The cat killed a snake. Snake here is a object. Okay, but we know that as per the rule we have to change the position of subject and ऑब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है. तो ऑब्जेक्ट को हम अभी बनाएंगे सब्जेक्ट, सो इट विल कम इन फ्रंट. ओके, सो अ स्नेक. अ स्नेक, नाउ इट नीड्स अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ पैसिव वॉइस, सो वी विल ऐड हेल्पिंग वर्ब wherever required. So a snake. Here the sentence is in past tense. Okay, आप देख सकते हो कि killed है जो कि past form of the verb है, इसीलिए a snake was killed. Here we will add preposition by the cat. cat को हमने पीछे ले लिया है, so a snake and the cat, उनके बीच में हमें लगाना है was killed by. Okay, then only it will make a proper complete sense. Here you have seen that we have used the preposition by.
बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया है कनेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कैट। तो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमने प्रीपोजिशन बाय यूज़ करा है, ओके। लेट्स लुक ऑन टू सम एग्जाम्पल्स। Marilyn mailed the letter. Let's look on few more examples. Marilyn mailed the letter. Okay, here object is letter, okay, and subject is Marilyn. So we will change the position, right? The letter was mailed by Marilyn. Okay, that we have formed. कैसे फॉर्म किया हमने ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेते हैं, फिर वर्ब, ओके, वर्ब इज फॉर्म्ड यूजिंग इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी और शेल बी एज पर द टेंस गिवन। यहाँ पर पास्ट टेंस है इसीलिए हमने वॉज यूज़ किया। द लेटर वॉज पास्ट टेंस है, सिंगुलर भी है, ओके। सो द लेटर वॉज मेल्ड बाय Marilyn, okay. So we added the auxiliary, we added the helping verb was in the sentence. Children, through this table we will see all the tenses and understand how to change them from active to passive, okay. So when the sentence is present indefinite tense, you will bring object in front and make it subject, okay. You will bring object in front, you will add is, am, are plus verb, third verb form, okay, V3 form। ये तो आपको याद ही रखना है कि चाहे कोई भी टेंस का हम पैसिव करें, सब में V3 ही लगाना है, ओके। तो पैसिव करने के लिए V3 फॉर्म ही आपको याद रखने हैं और वही आपको चेंज करना है। सो V3 फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये भी आपको याद रखना है, ओके। सो सिर्फ जो चेंजेस है वो कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं चेंजेस, यहाँ पर होंगे, ओके। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हो तब इज, एम, आर लगाना है। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो तो सेम टू सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। फिर यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस है, ओके, कंटिन्यूअस डिनोट्स दैट एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। सो व्हेन द सेंटेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस टेंस, यू हैव टू ऐड इज, एम, आर प्लस बीइंग, ओके, BEING, बीइंग। तो आपको बनाना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ठीक है। फिर आपको इज, एम, आर में से जो सूटेबल हो वो लगाना है, प्लस बीइंग लगाना है, प्लस वर्ब फॉर्म, थर्ड वर्ब फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वैसे ही अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ठीक है। फिर हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक यूज़ करना है जो सूटेबल हो। हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है, हैज़ सिंगुलर के लिए होता है, आई के लिए हैव होता है, यू के लिए हैव होता है, ओके। दिस ऑल वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर टेंसेस, ओके, दैट यू हैव टू ऐड सूटेबल हैज़ और हैव प्लस बीन, okay, BEEN, been. Children get confused while transforming, while changing from active to passive, कि बीन लगाना है कि बीइंग, पर बीन है वो परफेक्ट टेंसेस में लगता है और बीइंग है यानी कि BEING वो कंटिन्यूअस में लगाना है। कंटिन्यूअस में ING आता है ना, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट ऑल्सो, दैट वेन एवर वी आर चेंजिंग इन टू कंटिन्यूअस टेंसेस वी आर चेंजिंग, ओके। कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव कर रहे हैं तो वापस हमको BEING, बीइंग लगाना है वर्ब फॉर्म के आगे, V3 के आगे। और जब हम परफेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तब हमें हैज़, हैव प्लस बीन लगाना है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी पास्ट, ठीक है, जब पास्ट का सेंटेंस है
तो वॉज या वर लगाएंगे, ठीक है, वॉज या तो फिर वर। वो तो सिंपल ही है कि आपको ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाना है। जब पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग। ओके, कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा ही, चाहे आप अभी का बना रहे हो। टेंसेस चेंज आपको नहीं करने हैं, पर आपको सूटेबल बनाना है। V3 के आगे आपको ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब डालना है जो टेंस को फॉलो करे। ओके, सो यू विल ऐड बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट प्लस हेड। ओके, टू पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें हेड यूज करना है। हेड प्लस बीन, हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, नाउ फ्यूचर इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर के लिए आपको विल और शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ओके, विल शैल बी V3 सब्जेक्ट। फिर फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस एस। देखो ये परफेक्ट है ना, तो बीन लगेगा, ठीक है, हैज़ हैव लगेगा, और फ्यूचर है इसीलिए विल शैल लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। For continuous tense, while making passive, we will use being. Okay, being, being. For perfect tense, we will use has, have, had plus been. Okay, for modal auxiliaries. Okay, for example, modal auxiliaries are given in the sentence. We will use modal auxiliary plus be. For example, we will use can be, may be, might be, must be, should be, okay, shall be. Like this, like that we are going to use. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में हमें क्या लगाना है। ठीक है, ये एक्टिव दिया है आई प्ले अ गेम। आई प्ले अ गेम, ये आपको प्रेजेंट टेंस एक्टिव सेंटेंस दिया है जहाँ आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो अ गेम। ठीक है, फिर हम लोग को इज एम आर में से कुछ यूज़ करना है, तो अ गेम इज, वी हैव टू चेंज प्ले इन टू प्लेड, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है प्लेड। एंड हु इज प्लेइंग? I, we have to convert I into me. So a game is played by me. Second sentence is given in past tense. I played a game. Okay, so a game was played by me. Okay, easy है ना? फिर future. Okay, I will play a game. I will play a game. A game will be played by me. A game will be played by me. Now we will see how to convert continuous tense into passive. For example, active में दिया है I am playing a game. ठीक है, I am playing a game. So we have to, change the places. So a game is being played by me. Okay, a game is क्या दिखाता है? प्रेजेंट। being वो कंटिन्यूअस, और V3 तो हमें ऐड करना ही करना है। सो अ गेम इज being played by me. past continuous, I was playing a game. Okay, a game was being played by me. Future continuous. Future continuous tense cannot be changed into passive.
यानी कि अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस दिया है तो आपको वैसा का वैसा पूरा सेंटेंस लिखना है. ओके, देयर विल बी नो चेंज, वी कांट चेंज इट. नाउ परफेक्ट टेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट. I have played a game. Okay, so again we will bring object in front. A game. Game is singular or plural? It is singular, so we will add has. ठीक है, हमको चेंज भी करना पड़ेगा. अगर हैव दिया है तो हैव का हैव हर बार नहीं लगता है. ओके, अकॉर्डिंग टू योर subject, according to your object which you are bringing in front, that you have to add the helping verb auxiliary. Okay, so a game has, फिर हम परफेक्ट में बीन लगाते हैं, BEEN, बीन प्लेड बाय मी. ओके, V3 तो लगना ही है हमेशा, हर एक पैसिव सेंटेंस में V3 फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा. ओके, but you have to see to it that if it is perfect you have to add been, if it is continuous you have to add being. Okay, if it is simple you have to add is, am, are, was, were or shall or will be. Okay, ये आपको सिर्फ याद रखना है. ओके, यहाँ पे अभी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है. I had played a game. Okay, so a game had been played by me. फ्यूचर में आई विल हैव प्लेड अ गेम, आई विल हैव. ओके, सो अ गेम, गेम को तो आगे ही लेना है. अ गेम विल हैव बीन प्लेड बाय मी. ओके, बीन इज फॉर परफेक्ट. इवन इफ इट फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, वी हैव टू ऐड बीन, वी हैव टू ऐड V3, बट वी हैव टू सी दैट वी हैव टू ऐड हैज, हैव, हैड. ओके, दैट वी हैव टू सी. विल, शैल क्या हमको ऐड करना है, हैव करना है, हैड करना है, वो आपको सिर्फ ध्यान देना है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. इसका हम है पहला वाला हम लोग ट्राई करेंगे. पहला वाला मैं करवाती हूँ, आगे के आपको ट्राई करने हैं. ओके, यू मस्ट राइट दिस आर्टिकल टुडे. ठीक है, अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है? ठीक है, वर्ब है. ओके, वी हैव टू मेक एक्टिव टू पैसिव. ओके, हमको पैसिव बनाना है. तो हमें पहला स्टेप पता है, हमको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को. फिर हमें उसकी प्लेसेस चेंज करनी है, राइट. तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे. यू मस्ट राइट दिस आर्टिकल टुडे. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू. वर्ब क्या है? राइट. और ऑब्जेक्ट क्या है? आर्टिकल. ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो आपको वर्ब को पूछना है व्हाट. ठीक है, राइट व्हाट, राइट आर्टिकल. सो अभी हमें पता है एज पर द रूल वी हैव टू चेंज द प्लेस. तो हमें आर्टिकल को आगे लेना है. तो हम लिखेंगे द आर्टिकल. नाउ हम लोग को मॉडल ऑक्सिलरी को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है, पर हमें पीछे बी लगाना है. ओके, मस्ट बी. Article must be. Now we have to use the verb which we will use in third form. We will make past participle form of the verb, that is written. Okay, write का past participle है written. So हमने यूज़ किया written. Now हम लोग को सब्जेक्ट लगाना है, पर सब्जेक्ट के आगे हमें by लगाना पड़ेगा to connect. Okay, तो हमें लिखना है द आर्टिकल मस्ट बी रिटन बाय यू टुडे. वी विल ऑल्सो सॉल्व द सेकेंड वन. ओके, चिल्ड्रन लव टॉयज. नाउ दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. ओके, दैट चिल्ड्रन लव टॉयज. हियर व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है अपना चिल्ड्रन, लव अपना वर्ब है और टॉयज अपना ऑब्जेक्ट है. ओके,
सो डेफिनेटली टॉयज़ को हमें आगे लाना है और चिल्ड्रन को पीछे, ठीक है। तो टॉयज़, टॉयज़ प्लूरल है, प्रेजेंट है, तो प्लूरल प्रेजेंट यानी कि आर। टॉयज़ आर, वी विल मेक थर्ड फॉर्म दैट इज लव्ड, ओके, बाय चिल्ड्रन। इट इज़ ईजी ना, इट इज़ वेरी ईजी। सो टॉयज़ आर loved by children, है ना। ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करना है, ओके। नाउ दिस वर सिंपल सेंटेंसेस। इफ वी वांट टू चेंज इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस, देन ऑल्सो वी विल फॉलो सम रूल्स, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब पोजिशन चेंज करना तो वही रहने वाला है, ओके। सो we have to interchange the position of subject and object. We have to add question mark. We have to not add any helping verbs, okay। अगर helping verb कुछ दिया है तो वही लिखना है, okay। अगर आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड दिया है जैसे कि हु, whom, what, where, तो वो भी आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, उसमें आपको चेंजेस करने नहीं है। अगर आपको इज, वॉज, आर, वर दिया है, ठीक है, तो आपको है वो चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आपको डू, डिड, 10 दिया है तो आपको उसे बनाना पड़ता है इज, वॉज, आर। डू का आपको बनाना पड़ता है इज, डिड का आपको बनाना पड़ता है वॉज, 10 का आपको बनाना पड़ता है आर, ओके। तो ये आपको चेंजेस थोड़े थोड़े करने होते हैं। लेट अस चेक सम एग्जाम्पल्स। इज ही लर्निंग द लेसन, यहाँ पे लेसन है वो ऑब्जेक्ट है, उसको आगे लाना पड़ेगा, और ही है उसको पीछे, तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। इज द लेसन learnt by him, learnt is the third form of the verb, okay। is the lesson learnt by him। did they play the game, okay, okay। did they, तो did को हमें चेंज करना है was में, ठीक है। did will be changed into was, तो was the game played by them, okay। so they का them हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, ठीक है, और डिड का वॉस किया हमने। रिमेंबर हु विल बिकम बाय हुम इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करते वक्त अगर हु दिया है तो हुम करना है, ठीक है। हियर हु टीचेस यू ग्रामर, हु, तो बाय हुम इज ग्रामर टॉट टू यू, टीच का टॉट, ओके, और बाय हुम आर यू टॉट ग्रामर। ऐसे दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ओके। वी विल सॉल्व द फर्स्ट सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल। हैज शी डन हर होमवर्क, हैज शी डन हर होमवर्क। नाउ वी विल नॉट चेंज हैज बिकॉज वी हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन। सो हैज हर, now we will bring object in front, so we will write homework been done, okay, been done by her, like this we will make। did the boy write this article, article is ऑब्जेक्ट, ओके। डिड का हमको चेंज करना है वॉज में, सो वॉज द आर्टिकल रिटन, राइट, वी चेंज्ड इनटू रिटन बाय द बॉय, ओके। लाइक दिस वी हैव टू चेंज द एक्टिव to passive। verbs with two object, okay। some verbs in sentence have two object, तो तब क्या करना है अपन को,
She told me a story. Here in this sentence there are two objects, me and story. Two objects are there. So how we will change it? So when the active voice is changed into passive, one object becomes the subject in the passive voice. एक को सब्जेक्ट बनाना है, एक को ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रखना है. तो she told me a story. This is a question. Okay, she told me a story. So a story we will take in front. So a story was told to me by her, or I was told a story by her. Both are correct. She gave me a book. Me का हम लोग को I करना है. I was given, gave का given a book by her. A book was given to me by her. Okay, similarly you have to solve the remaining. My father gave me a bike. A bike was given to me by my father. Okay, a bike was given to me by my father. Okay, बाइक इज ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने उसको आगे ले लिया. वॉस, फिर गेव का गिवन किसको दिया? मुझे. तो टू मी बाय माय फादर. ऐसे हमको बनाना है. वर्ब्स फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन. ओके, वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के पीछे प्रीपोजिशन हो. ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. दे स्टेयर्ड एट मी. यहाँ पे स्टेयर्ड है वो आपका वर्ब है, उसके पीछे एट है वो प्रीपोजिशन है. राइट. So in the sentence of active voice, if verb is followed by a preposition, means if preposition comes after verb, the preposition is kept as it is in the passive voice. हमको preposition के साथ कोई मस्ती नहीं करनी, उसको वहीं के वहीं रहने देना है. Okay, we don't have to do anything about it. So let's take one example. They stared at me. Okay, so I was stared at by them. Okay, they stared at me. Okay, so they का them होगा वो पीछे जाएगा, him है वो आगे आएगा. तो अगर him आगे आएगा तो he बन जाएगा, he है ना, he बनेगा. He was stared. अभी हमें प्रीपोजिशन का कुछ नहीं करना है, इसलिए at का at ही लिखना है. By them. Like this we have to solve. Okay children, complete working zone in your textbook. Okay, read the chapter. If you have any doubt you can call me. Okay, if you are having any doubt you can call me. Read the chapter. Okay. Bye children, we have completed this chapter, this topic, active passive voice. Do practice the same. Okay, bye, take care.